પાંચ ક્યાં છે મીટિંગ? કાંઈ મળતું જ નથી. બેક ટુ મીટિંગ ક્યાંથી કરાય? સર લિંક પર ક્લિક કરો. અચ્છા, વોટ્સએપ પરથી લિંક પર ક્લિક કરું. તે તો ઓપન ઝૂમ યુઆરએલ લોન્ચર ક્રોમમાં ટેબ ખુલી ગયો. મીટિંગ હા થઈ ગયું. કંઈક ફ્લોટિંગ બહાર હતું. નાવ આઈ કેન સી માય સેલ્ફ. સ્પોટલાઇટ. સર બધાને કેમેરા બંધ કરાવી દો ને. કેમેરા બંધ કરી દેવાય પણ પછી કેમેરા બંધ કરી મને કોઈ દેખાય નહીં અને પછી કેમેરા બંધ કરી અને એ લોકો બાજુમાં ટીવી જોતા હોય છે. તું એવો નથી પર્વ, પણ આ બધા છે ને આમ સર હું અમુક અમુક. બોલતો હતો મનાન. કોણ? મનન? મનન રોલ નંબર 6. હા તું તને શું થઈ ગયું? શરદી થઈ ગઈ લાગે છે. હા હા, ને તો તારો અવાજ હું ના ઓળખું એવું બને. चलो मैं शेयर स्क्रीन करके तुमको तुम्हारे मार्क्स दिखाता हूँ. जो कल क्विज खेली थी जिसमें कुछ कुछ गूगली थी मैंने. ये क्या किया था? ट्विस्ट किए थे कुछ क्वेश्चंस. सो टेस्ट so Jugal Thakkar is 75 marks with 93.75 percentage and batch rank is 1. Duration 3 minutes 9 seconds. फिर कंदर्प, स्वयं, विधि, आर्या, हर्षिल, माही, काव्या, वेद, सुहानी. So top 10 is this much. वेद, काव्य, माही, हर्षिल और फिर सुहानी, दिया, सृष्टि, दिशा, वाग्मी. फिर तो 37 ये पासिंग के नीचे चले गए सब, बट एटलीस्ट यू गेव द टेस्ट, दैट वाज इम्पोर्टेंट. हर्षवर्धन पूरी 5 મિનિટ સર ને. મેં આપી હતી. કોણે? મેં નિર્મલ. હવે આમાં કેવું છે જો, એક મિનિટ. ડોન્ટ સેવ, ઓપન અગેન. પેલો વિમલ બી કે છે એણે આપી હતી, નિર્મલે આપી હતી, ઋષિ મારો જીવ ખાઈ ગયો આપી હતી. સર મેં બી આપેલી છે. હા પણ એક સેકન્ડ, એવું નથી ને. જો આ બધે એબસન્ટ બતાવે. નિર્મલ ગાંધી એબસન્ટ. સર મેં તો કાલ તમારા જોડે ફોન ઉપર બી વાત નથી કરી એક્ઝામ આપીને પછી. બને બને એટલે આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ. હા કાલવાળી ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ છે ને? આ ગઈકાલ વાળીનું છે. સર મેં તો 2 વાર આપી તો બી ના આવ્યું. તારા માર્ક્સ મળી ગયા હતા ને એમાં? આ માર્ક્સ હા સર મને બી મળી ગયા હતા. સર મને બી મળી ગયા હતા. હા પણ કંઈક છે, હવે શીખશું. હું પાછું જોઈશ સર એક વાર. તમે અમે કંઈક મને કીધું તું બી કંઈક કાલ વાત થઈ ત્યારે કંઈક 8th રેન્ક કેવું કંઈક. હશે. આમાં નામ નથી મારું સર. નથી છે, ઘણા બધાનું નથી. આમાં નામ નથી. નથી એટલે એક ચલ ટ્રાય કરી લઈએ આપણે. દેન વી વિલ સ્ટાર્ટ. બધું શું છે યાર? બંધ, મિનિમાઇઝ. તમે સાઈડમાં આવો. ચેટ બેચીસમાં 10th મેથ સાયન્સ ટેસ્ટ. સેકન્ડ ક્વિઝ અને સેકન્ડ ક્વિઝમાં કંટ્રોલ F5202 માહી નથી આમાં. હા સર એ જો મારું નામ છે. આ માહી કાશીપારા. ઓકે, હવે હું તમને કહું જો પ્રોબ્લેમ. માહી કેમ માહી તું છે? યસ સર. સર સર મેં ટેસ્ટ આપ્યા હતા. હા વાંધો નહીં, બીજો બી હશે જ આમાં. પ્રોબ્લેમ ઇઝ 50 હતા. હા પ્રોબ્લેમ ઇઝ
કે એપ વર્ક્સ ઓન વન ડેડિકેટેડ મોબાઈલ નંબર, અને તે મોબાઈલ નંબર જે બદલ્યો હતો ને પછીથી કે પહેલાં કે જે બી અધવચ્ચે, આ એનું કંઈક તો રીઝન છે. પછી માહી સિવાય નિર્મલ તું હજી એબસન્ટ જ બતાવે છે, પણ આઈ સી વોટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ. અને સર મારું છે. વિમલ, મારું સર મેં 2 વાર આપી હતી પણ મારું એક જ વાર દેખાડે છે. મારું પણ સર એબસેન્ટ દેખાડે છે. વત્સલ સર એબસન્ટ, અંશ જો ને અંશ છે. અંશોજિત્રા 35. સર મારું સર મારું મારું એક જ વાર દેખાડે છે. સર સર મારે કાલવાડીમાં તો બતાવતા જ નથી નામ. આ કાલવાડી છે. સર સિદ્ધાર્થ, અંશ હતો, સિદ્ધાર્થ છે. સર મારું તો પણ એક જ વાર આવ્યું હતું સર. તો છે બરાબર. કંઈ નહીં, આઈ ફિગર ઇટ આઉટ. તો પણ એપમાંથી મારે આપોઆપ લોગ આઉટ થઈ દઉં છું. એ પ્રોબ્લેમ તારા ફોનનો છે. એવો મને કોઈ અત્યાર સુધી કમ્પ્લેન કરી નથી, તો તું ચેક કર, મને નહીં ખબર પડે. एनीवेज चलो बहुत खेल लिया क्विज. वी हैव ऑल आवर 50 पार्टिसिपेंट्स. चैट वैट बंद करो, और 3 जूम मैं ये बंद कर सकता हूँ. हाँ, फिर लिंक्स आई कैन क्लोज. लेसन लिखो, टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट मैथ्स लेसन 1 रिवीजन. और आज का लेक्चर आज ही अपलोड हो जाएगा इन अ रिवीजन फोल्डर सेपरेटली. तो लास्ट टाइम का जहाँ था वो रिवीजन में आ जाएगा वगैरह वगैरह. यू विल नो इट. वेयर एम आई? 10th मैथ्स, रियल नंबर्स. लिखो सबसे पहला टॉपिक सर्ड्स, SURDS. ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आई एम टीचिंग यू बिकॉज 7-8 साल से बोर्ड में ये टॉपिक था और हर साल पूछते थे. सडनली दे चेंज द टेक्स्ट बुक एंड देयरफॉर द टॉपिक हैज़ बीन रिमूव्ड. तो ज़रूरी है ये करना, तो सीखो. सर्ड्स, राइट डाउन द डेफिनेशन. A number containing root is called a surd. Example: 4√3, comma 5√7, comma 7/√2, comma 3 + √5, comma 7 - 2√6. तो surd is just a fancy name. It means roots, जो नंबर सिस्टम में 9th में किया था. All of you know a plus b whole square formula. A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. What is 7 square? 49. And what is ab square? a square b square. तो होल स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं, एक नंबर का निकाल सकते हैं, ए बी का निकाल सकते हैं, a + b का भी निकाल सकते हैं. अब इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा? रूट ऑफ a square b square. तो आंसर इज AB. रूट ऑफ 49, आंसर इज 7. एंड रूट ऑफ a square plus 2ab plus b square is a plus b.
ये समझ में आता है तुमको? डू यू अग्री? इट्स होल स्क्वायर या रूट? So today what we are going to learn is how to find out the root of surds. But उसके लिए you have to solve 3 sums which I give you. Sum number 1, root 2 plus root 3 whole square का आंसर निकाल. ये 9th में था और फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने. Start solving and finding out the answer of root 2 plus root 3 whole square. Second, 2 root 3 plus root 5 whole square. And third, 2 root 7 plus 3 root 2 whole square. Okay, I am solving them by using the formula a square plus 2ab plus b square. A square मतलब root 2 square 2. B square मतलब root 3 square 3. And 2ab is 2 root 2 root 3 2 root 6. Therefore final answer is 5 plus 2 root 6. 2 root 3 का square 12. रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड 2ab is 4 root 15. You can interrupt me if you are not able to understand this. ये 9th का मैथ्स है. 28 3 root 2 का स्क्वायर 18 और यहाँ पे आएगा 12 root 14. 46 plus 12 root 40. ये मैजिक कैसे हुआ? ना समझ में आया तो अब भी पूछो, वरना चांस मिस. ये तो 9th है, इसका एग्जैक्ट उल्टा सीखना है. मीनिंग जो 9th के आंसर्स थे वो अब क्वेश्चन बन गए. So these are your sums. और तुम्हारा काम है to learn how to find out the root of this fancy looking number. और बहुत ही easy method है. So first copy the 3 questions. Number 1, root of 5 plus 2 root 6. Second sum and third sum. तीनों copy कर लो. Then we'll solve them one by one. 3 लाइन लगती है. It's a small sum. Leave some space. Ready? You have to, okay, यहाँ पे लिख, उसके नीचे और लिखो a plus 2 root b. The format of your question should look like this: a plus 2 root b. कहने का मतलब है कि कंपलसरी यहाँ पे 2 ही होना चाहिए. यहाँ पे 2 है.
which means you can directly start solving the sum. लिखो is equal to root of 5 plus 2 root 6. 6 को स्प्लिट करके 5 लाओ. 3 2 जा 6, 3 plus 2 5. तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया. Therefore next step will be 5 becomes 3 plus 2. Root 6 becomes 3 into 2. और उसके बाद रूट समथिंग प्लस रूट समथिंग 3 और 2. ये आंसर है तुम्हारा. इफ यू अलाउ मी टू गो बैक, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 6. तो 5 प्लस 2 रूट 6 का रूट 2 प्लस रूट 3 होगा ना. वही आ गया आंसर. धीरे धीरे समझ में आएगा. सो दिस इज फर्स्ट सम. कॉपी. हाँ सर लास्ट सेकंड स्टेप्स કોપી કરી રાખ. 3 સમ પતશે ને તો આપોઆપ દેખાઈ જશે કે ઓ આ કરવાનું હતું. હમણાં કોપી કરી રાખ. 17 प्लस 4 रूट 15. मैं शुरू कर रहा हूँ. रूट ऑफ 17 प्लस 4 रूट 15. बट द मेथड अलाउज ओनली 2 आउटसाइड. तो आ 4 ने શું કરશું આપણે સ્પ્લિટ કરશું. સેકન્ડ સ્ટેપ में आएगा 17 प्लस 2. तो બીજો 2 क्या गयो रूटनी अंदर. और ये फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो. हेरॉन्स फॉर्मूला के ज़माने से तुमको पता है रूट में से कुछ बाहर निकालोगे तो 2 नंबर 1 हो जाता है जोड़ी बना के बाहर. बट बाहर से अंदर लाओगे तो 1 नंबर डबल हो जाता है. 2 बिकम्स 2 2. देयरफॉर द सम बिकम्स 17 प्लस 2 रूट 60. सो योर क्वेश्चन एंड दिस न्यू फॉर्मेट मैथमेटिकली सेम है. बट अब देखो फॉर्मूला मैच हो रहा है. a प्लस 2 रूट b 17 प्लस 2 रूट 60. अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है. 60 को स्प्लिट करके 17 लाओ. 12 5 जा 60. 12 प्लस 5 17. सो नेक्स्ट स्टेप में 17 बिकम्स 12 प्लस 5 and root 60 becomes 12 into 5. जिसका मतलब है 12 and 5 are the two magic numbers. दोनों के ऊपर रूट लगाओ और बीच में प्लस, क्योंकि प्लस वाला सम है. दिस इज योर आंसर. बट रूट 12 तो 2 रूट 3 होता है. सिंप्लीफाइंग 9 स्टैंडर्ड. अब जब पीछे मुड़ के देखोगे 2 रूट 3 प्लस रूट 5 आंसर कैसे आया. 2 रूट 3 प्लस रूट 5 ये रहा. वी स्टार्टेड बाय टेकिंग 2 रूट 3 प्लस रूट 5. तो 2 रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज दिस और इसका रूट is 2 root 3 plus root 5. Give me one more chance. Let me explain one more time the third sum. 46 plus 12 root 14. ये एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाएगा. ये नहीं करते. इसको इग्नोर कर दो. लिखो फोर्थ सम या whatever you want to write. root 3 minus root 5 whole square is 3 minus 2 root 15 plus 5 is 8 minus 2 root 15. तो ये हो गया 9 स्टैंडर्ड. इफ यू वांट यू कैन राइट 9 स्टैंडर्ड. ये एक्सपेंशन है. बट 10th में अगर पूछ लिया तो पूछेंगे फाइंड द रूट ऑफ
8 माइनस 2 रूट 15, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 15 को स्प्लिट करके 8 लाओ। 5 3 ज़ा 15, 5 plus 3 8, therefore 8 becomes 5 plus 3 minus 2 root 15 becomes 5 into 3, and therefore answer is 5 3। बड़ा नंबर पहले लिखने का, बीच में माइनस और इंडिविजुअल रूट्स। अब एक सवाल, लॉजिक, क्वेश्चन तो √3 माइनस √5 था, आंसर में हमेशा बड़ा आगे लिखने का, तो ये √5 माइनस √3 हो गया। हाउ वुड यू जस्टिफाई, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? સર સ્ક્વેરિંગ પછી માઇનસ ની કોઈ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય ને. હા -1 નો સ્ક્વેર 1 હોય એટલે એ રીતે આપણે માઇનસ પહેલા આવે કે પછી આવે કઈ ખબર ફેર ના પડે. એક્ઝેક્ટલી, √3 માઇનસ √5 નો સ્ક્વેર કરો કે √5 માઇનસ √3 નો સ્ક્વેર કરો, આન્સર સેમ આવશે। એનો મતલબ √8 માઇનસ 2 √15 ના બે આન્સર પોસિબલ છે, એક √5 माइनस √3 અને બીજો √3 माइनस √5, दोनों लिख सकते। रीजन, किसी ने मुझे पूछा व्हाट इज √49, तो अगर मैं 8th स्टैंडर्ड में होता तो मेरे लिए √49 का आंसर है 7, बट मैं 10th में हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए दैट देयर आर 2 रूट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझा? एक सम दे रहा हूं, ट्राई करो, इट्स सेम लाइक मिडल टर्म स्प्लिटिंग। Recording is not on, I know, because I am recording on another screen recording software which is on, तो तुमको तुम्हारा लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी। गुड टू पॉइंट दैट आउट, कभी कभी मैं वो सॉफ्टवेयर नहीं शुरू करता हूँ। ये सम ट्राई करो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 2 रूट 36, वेरी इजी, और ये 1 मार्क का सम होगा पूछेंगे तो। हो गया है तो हो हल्ला किए बगैर ये ट्राई करो। और ये ट्राई करो, दे आर ऑल वेरी इजी। एम फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। Done? अब Yes sir. so it was easy, but presence of mind, silly mistake किसको बोलते हैं? बड़ा नंबर हमेशा आगे, so 12 and 3 are the magic numbers, so √12 plus √3, √6 plus √5 and √8 plus √4, but √12 can be simplified, तो full marks चाहिए तो 2√3 plus √3 लिखना पड़ेगा, बट 2√3 plus √3
इज 3√3. तो हो सके उतना सिंप्लीफाई करो. दिस इज द आंसर. नथिंग कैन बी डन. एंड √8 is 2√2 and √4 is 2. That's the answer. This is 10th standard, exact reverse of 9th, जो वैसे तो ओमिट है बट आई वांटेड टू टेल यू दिस, क्योंकि बाहर के जब पेपर सॉल्व करोगे तो कभी कभी पूछ लेते. अब एक लेवल अप. I had told you that the format of your question should compulsory look like a plus 2√b. जो ये दो सम में नहीं होने वाला है, फिर भी सम सॉल्व करना है. कैसे? मैं एक करूंगा, तुम एक करना. फाइंड द रूट ऑफ (16 + 4√15). 15 को कितना भी स्प्लिट करो, हाँ वो 15, हाँ 15 1 जा 15, 15 + 1 15. बट दिस इज रॉन्ग. और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर करना, तो 16 + 4√15 आएगा ही नहीं. सो दिस इज रॉन्ग. द रीजन इज यू आर नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट, एंड द फॉर्मेट कहता है कि रूट के आगे 2 होना चाहिए यहाँ पे. तो क्या करेंगे, एक 2 को बाहर रखूंगा और दूसरे को अंदर धक्का दे दूंगा. एंड व्हेन आई पुश दैट 2 इनसाइड इट बिकम्स 2 2. Therefore my question becomes 16 + 2√60. And then I have to think about splitting it. 6 10s are 60 and 6 + 10. तो बड़ा नंबर पहले, 10 6 and 10 + 6. Final answer is √10 + √6, which is correct. Try to solve this sum. Mm-mm. 14. સર આવી ગયો મારે પણ 3 + √5. हाँ ओके, हाँ बराबर बराबर. મેં 2 બાર રાખ્યો અને 3 ने 6 मतलब 2 3 जा 3 को पुश किया. So it became 14 + 2√45. And 45 मतलब 9 5 are 45. Therefore 9 and 5 are magic numbers. Therefore final answer is 3 + √5. Done. So this is the topic of surds, which I wanted to share with you. Now we'll go on to our real chapter, lesson number 1, and revise it. Real numbers. A is equal to BQ plus R. So this is theory. Any division you do, it is symbolically written as A upon B. And when you are dividing A by B, long division format is this: A upon B. ऊपर हमेशा quotient, नीचे हमेशा रिमाइंडर. और इसके 4 नाम पता होने चाहिए. A is called dividend.
b जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इज कॉल्ड डिवाइजर, q इज द कोशिएंट, r इज द रिमाइंडर। और ये 4 नंबर का सिंगल लाइन इक्वेशन बाय हार्ट होना चाहिए। a, b, r और q का सिंगल लाइन इक्वेशन इज a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट न्यू। बट एक सिंपल सा डिवीजन बताता हूं। 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 में 2 7s are 14, रिमाइंडर 1। हाउ कैन यू राइट द रिलेशन बिटवीन 7, 2, 15 and 1 in a single line? A is equal to B multiplied by Q plus the remainder। तो देखो 15 is 2 into 7 plus 1, and that is where the chapter starts from, जहां से यूक्लिड्स मेथड शुरू होती है। टेन बाय 3, 10 divided by 3, 3 3s are 9, remainder 1। तो the one line relationship between this is a, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। फिर से एक बार 19 अपॉन 4, 4 4s are 16, remainder 3। The one line equation is 19 is equal to 4 into 4 plus 3, and this one line equation you have to learn to write it directly। तो 17 by 2 का इक्वेशन डायरेक्टली लिखने के लिए 17 is equal to 2 multiplied by what plus what, and this is Euclid's algorithm। Try to write the answer. I am writing 5 sums। 24 upon 5, so 24 is equal to 5 into something plus something। अगर ये करना आ गया तो यूक्लिड्स के सारे सम्स का HCF निकाल सकते हो। कंपलसरी बड़ा नंबर लेफ्ट साइड होना चाहिए, वरना ये मेथड काम नहीं करेगी। टू 8s are 16 plus 1, 5 4s are 20 plus 4, अब देखो दिस इज बिग नंबर्स, हाउ डू यू डिकोड? तो 12 तक तो टेबल आते थे। So when it is 320 is equal to 6 into what plus what, 320 को 6 से डिवाइड करो, 160 अपॉन 3, 3 5s are 15, 10, 3 3s are 9, आंसर आया 53.3333। मीन्स यू हैव टू ट्राई 53 into 6, 6 3s are 18, 318। તો 6 into 53 318 અને એમાં 2 એડ કરો તો 320 થઈ જાય। તો ये हो गया
into 53 plus 2. Any questions, then ask now in this technique, because this is the base of Euclid's algorithm. No. સર हाँ, સર એક્ઝામમાં ઇન કેસ ઓફ આવા સમ 2 માર્કરમાં આવી ગયા HCF ફાઇન્ડ કરવાના તો આની આખી ફૂલ મેથડ સાથે કરીએ તો ચાલે ને 3 4 के 5 स्टेप નો હોય એબ્સોલ્યુટલી, બટ બડા નંબર લેફ્ટ में, छोटा नंबर राइट में. ये હવે હું કરાવીશ. तो देखो यहाँ पे HCF वर्सेस HCF. लेफ्ट साइड पे मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स एल्गोरिदम करूंगा, और किसी ने पूछा ऑब्जेक्टिव में व्हाट इज यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो आंसर क्या होगा? राइट, यूक्लिड्स एल्गोरिदम. सेंटेंस नहीं है तो क्या लिखोगे? A is equals to BQ plus R. परफेक्ट. दिस इज यूक्लिड्स एल्गोरिदम. एंड फैक्टराइजेशन तो तुमको पता है क्या होता है. लेट्स ट्राई वन सम. 126 28. 126 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन में लेमा. तो 126 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट प्लस व्हाट. 56 प्लस 56 112. 28 4 जा 112, बचा 14. दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग. तुम्हारा एरिथमेटिक जितना पावरफुल उतना जल्दी समाएगा, और जितना वीक उतना तकलीफ पड़ेगा. So if I was a weak student, still I can get the correct answer by trial and error. 28 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगता. बट 280 इज वेरी बिग, तो मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ. 140 एंड 140 इज वेरी क्लोज, तो मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ. I'll keep multiplying till I become closest to 126. तो आमा आवश्य 112 जो 126 से कम है और सबसे नज़दीक है, और जो बचा हुआ है वो 14. अब मेन वीडियो जब मैं लिया था उसमें मैंने कुछ बोला था. कौन से नंबर सिलेक्ट करने के? ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड बराबर. सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड एंड फोर्थ. 28 इज इक्वल टू 14. कितना अच्छा लगा कि सबने गलत आंसर दिया ऑलमोस्ट, जिसने भी बोला, ताकि ये रिवीजन लेक्चर थोड़ा वसूल हो. रिवाइज करो, मैथ्स और साइंस रोज पढ़ो. 14 2 जा 28 बचा 0, और जैसे ही 0 आता है उसके ऊपर का नंबर इज व्हाट? HCF हाईएस्ट कॉमन our answer factor. Answer HCF of, and how do you write it? Is HCF bracket 126 comma 28 is equal to 40. Now same thing, if you have to find out by factorization method, it will be much easier. 2 63 जा 3 20 1 जा 3 7 जा and 7 1 जा, and 28 is 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा. जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनको चूज करो और एक बार लिखो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 and 7, therefore HCF is 14. Any questions? Easy. एक सम दे रहा हूं, ट्राई करो by both the methods side by side. Find the HCF by Euclid's division lemma of 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 .
and 350. Two. And use factorization to confirm that answer. સર 2 આવે છે. You don't need to be genius in maths, you need to be hard working. तो 38 के साथ ट्रायल लेना था, मैंने 8 का लिया और 9 का लिया. द क्लोजेस्ट वॉज 342. सो 38 9 था 342 प्लस 8 350. सेकेंड राउंड में 38 एंड 8. अब इजी हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा, 2 स्टेप बाद सम इजी हो गया. 4 and 4 plus 6 આવે. थ्री 350 के फैक्टर्स है 2 5 7 5 और 38 है 2 and 19. 8 4 जा 32 plus 6. 8 is equal to 6 1 जा 6 plus 2. 2. 6 is equal to 2 3 जा 6 plus 0. Answer is 2. अब LCM. LCM is least common multiple. But let me give you an overview about HCF LCM. कुछ एक समझने वाली बात. Your first number and your second number, whatever they are, it is mandatory कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा है. इट इज स्मॉल. लास्ट सम कौन सा सॉल्व किया, क्या था? 350 and 38. 38 and 350. 350 and 38. 38. दोनों से छोटा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 2. 49 और 700 दोनों के अंदर 7 है और 49 में 2 7 है, इसमें एक 7 है. सो कॉमन इज जस्ट 7. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर्स. इट्स अ फैक्ट. और दूसरी तरफ बड़ा क्या होगा? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब 350 के टेबल में और 38 के टेबल में कॉमन नंबर कौन सा है? तो 350 और 38 का LCM अगर मैं निकालूं मैन्युअली टू एक्सप्लेन इट टू यू, तो 350 1 जा, 350 2 जा,
350 3 जा, 350 4 जा, तो ये 350 का टेबल चल रहा है, यहाँ पे 38 का टेबल चलेगा। 38 1 जा, 38 2 जा 76, 38 3 जा। अब ये दोनों टेबल में कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके एक नंबर कॉमन आएगा, एंड दैट कॉमन नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टेबल्स आर इनफाइनाइट, टेबल्स आर इनफाइनाइट, सो जो भी एलसीएम नंबर है वो थोड़ी देर बाद, ये कॉमन है, थोड़ी देर बाद एक और कॉमन नंबर आएगा, थोड़ी देर बाद एक और કોમન નંબર આएगा। સો देयर आर એમ તો બહુ બધા આવશે। એક્ઝેક્ટલી, પણ એ બધાને કહેવાય સીએમ કોમન મલ્ટીપલ, પણ એલસીએમ લીસ્ટ એક જ હોય જે સૌથી પહેલા મળે। दिस इज द मैन्युअल अंडरस्टैंडिंग। दिमाग में क्या चलना चाहिए कि एलसीएम मतलब 350 के टेबल में और 38 के टेबल में, मतलब दोनों से बड़ा। एंड हाउ टू फाइंड आउट, लिखो एलसीएम ब्रैकेट 350 कॉमा 38, उसका इजीएस्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, मतलब साथ में फैक्टराइज करो इसको, जो तुम्हें आता है 2 19 वंजा 2 19 5 5 and 7। सिक्स 650। एनी क्वेश्चन? मैं पूछता हूं एक सवाल, 350 के टेबल में थोड़ा आगे जाके 6650 आया, 38 छोटा नंबर है तो बहुत आगे जाके 6650 आया, एंड दे बोथ आर सेम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाउ डू यू फाइंड आउट द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल? into 2 किसको इंटू 2? LCM फाइनल आंसर। एग्जैक्टली। अब ये इट्स एन इनसाइड मैथ्स, ये सीक्रेट मैथ्स है। 6650 is the least common multiple, but the next common multiple and then the next common multiple is nothing but the table of 6650। तो 6650 into 1, 665 into 2 करोगे तो 12,000, 650, 13,300। दिस इज द नेक्स्ट मल्टीपल। सिर्फ इंटू 2 किया, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करते जाओ तो यू विल गेट लाइक दिस। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूं जो टेक्स्ट बुक में है। मम्मी इज टेकिंग स्टेप्स which are 80 centimeters in length. Papa is taking steps which are 90 centimeters in length. And Chunnu is taking steps which are 30 centimeters in length. जब उन्होंने चलना चालू किया तो वो एक साथ थे, they were together, but the minute they all took their first step, वो आगे पीछे हो गए। मम्मी नंबर लाइन के हिसाब से 80 पे खड़ी है, पापा थोड़ा आगे, चुन्नू थोड़ा पीछे, बट चल रहे हैं। ऐसी कौन सी मैजिकल लाइन है जहां पे वो लोग वापस आके एग्जैक्ट वहीं मिलेंगे? ये टेक्स्ट बुक में है, एंड द आंसर इज LCM। समझ में आता है? हाउ टू फाइंड LCM ऑफ 80, 90 एंड 30?
साथ में करते रहते हैं. एग्जैक्टली तो पहले तो 10 ले लो, तो 8 9 और 3, फिर 3 ले लो, 3 and 8. So 3 3s are 9, 8s are 72, 10s are 720. 720 सेंटीमीटर बाद वो सारे वापस एक लाइन में आ जाएंगे उनके स्टेप्स, एंड दैट्स कॉल्ड एलसीएम विच हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन लाइफ. टेल मी, स्टार्टिंग में तो लाइन में थे, नेक्स्ट जब लाइन में आए तब तक मम्मी ने कितने स्टेप्स लिए थे? 90. 90. पापा ने कितने स्टेप्स लिए? 80. और चुन्नू ने कितने स्टेप्स लिए? 30. 30. 17. 170. 170. 170. 5 4 6 24 240. 240. अब ये कैसे हुआ? इस एलसीएम को तुम डिवाइड करो 80 से, तो 720 સેન્ટીમીટર જો 80 કરીને મારે કાપવાનું હોય તો કેટલા 80 જોશે? 90 ટાઈમ્સ. પણ પપ્પા 90 કરીને 720 પાર કરે છે તો એને 80 ટાઈમ્સ એટલે 80 સ્ટેપ્સ, પણ ચુન્નू 30 કરીને કરે છે તો 0 0 कट, ये 240 नहीं आएगा. और ये 90 80 भी गलत है ना? नाइन्टी 80 गलत है. और 9 और 8 आएगा. एग्जैक्टली 9 steps, 8 steps, 24 steps. 24. So this is practical application of LCM. Another practical LCM application is going round in circles. Starting point A, और A point से दो साइक्लिस्ट राज and Meena. Raj takes 20 minutes to finish one round and Meena takes 15 minutes to finish one round. तो ये तो दोनों आगे पीछे हो जाएंगे. तो when will they meet? And when will they meet? They will meet in future. और future में एक बड़ा नंबर आएगा. So indirectly you have to find LCM. 20 और 15 का LCM फाइंड करो. 5 4s are 5 3s are and 4 3s are 12. 12 5s are 60 minutes. एक घंटे बाद वो सेम पोजीशन पे मिलेंगे. और एक घंटे में राज ने कितने चक्कर मार लिए होंगे? 3. और मीना ने 4. Imagine this question. There are 50 books of Hindi and 35 books of Gujarati. और मुझे एक शेल्फ दी है जिस पे मुझे ये अरेंज करना है. और अरेंज करते समय मुझे कहा है कि हो सके उतनी ऊंची, हो सके उतनी टॉल स्टैक बनाना बुक का. बराबर. एक क्राइटेरिया दिया है कि था એટલી મોટી થપ્પી, और दूसरा क्राइटेरिया है कि हिंदी હોય કે ગુજરાતી હાઈટ સેમ હોવી જોઈએ. The height of the stack of Hindi books, પછી બે થપ્પી હોય કે 3, and height of Gujarati book should be same. तो जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सुनते हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच है टू अंडरस्टैंड कि ये तो HCF ही है ना. व्हाट इज दैट प्रैक्टिकल थिंग? चैप्टर 1 में 2 ऑप्शन है, HCF LCM. और ये મેક્સિમમ આપણે શોધવાનું છે ને, એટલે સૌથી વધારે તો હાઈએસ્ટ હોવું જોઈએ. એ તો મેં સમજાયું છે અને એ તો બી ટેકનિકલ છે.
સાવ એકદમ બુદ્ધિ વગરનો માણસ હોય ને એને બી ખબર પડી જાય કે HCF કે LCM, અને એનો આન્સર આમાં છુપાયેલો છે આ સ્લાઇડમાં. વેર આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ કે બે નંબરથી નાનો HCF હોય અને મોટો LCM હોય. તો કેટલી બુક્સ હતી? 50 અને 30. 50 and 30. તો 50 અને 35 બુક્સ છે. જો હું LCM કાઢવા બેસીશ તો એ તો 50 અને 35 થી મોટો આવવાનો છે. આટલી તો બુક્સ જ નથી. આટલી તો બુક્સ જ નથી. એટલે મારે નાનો આન્સર લાવવાનો છે. અને એ નાનો આન્સર સપોઝ 5 હોય તો વોટ ઇઝ ધીસ 5? એક્સપ્લેન મી ઇન યોર લેંગ્વેજ કે 5 હે ક્યા? સર મેક્સિમમ એક થપ્પામાં 5 હિન્દીની બુક અને 5 ગુજરાતીની બુક. एग्जैक्टली 5 એટલે नंबर ऑफ बुक्स इन वन थप्पी. तो ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ऑफ HCF एंड LCM. प्रैक्टिस बुक में यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम सम्स. तुमने प्रैक्टिस बुक की चैप्टर 1 की? હા સર કરીને पता ही है ना? બધા ચેપ્ટર एकदम आ रही. જો આપણે શું બાકી? ટ્રિગો, એપ્લિકેશન ઓફ ટ્રિગો, સર્કલ, એરિયા અને એસએવી. અને પ્રેક્ટિસ બુક ઇઝ ડન ફોર 1 2 3 4 5 અને 7. 7 એટલે કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી. 6 ઇઝ ટ્રાયંગલ, જેની જરૂર નથી. 8 9 10 11. ઓકે, સો વેરી સૂન આઈ વિલ ગિવ યુ સમ વર્ક ફ્રોમ પ્રેક્ટિસ बुक ऑल्सो. फिलहाल यूक्लिड्स डिवीजन एक टिप फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, if you find a big sum, please make a point to remember the numbers for your safety. डॉन मत बनो कि मैंने, ऑफ कोर्स तुम सबको यूक्लिड्स एल्गोरिथम और मेथड आती है, मुझे भी आती है, बट एग्जाम प्रेशर, लेस टाइम एंड सिली मिस्टेक, ये 3 चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है. टाइम इज नॉट इन आवर कंट्रोल. एग्जाम डिफिकल्ट हो सकती है और तुम प्रेशर में आ गए तो इजी सम भी गलत हो जाएगा, और ये इजी नहीं है क्योंकि बड़ा नंबर. तो जहाँ पे भी इफ यू फाइंड समथिंग ऑकवर्ड, स्मार्ट वर्क इज प्लीज बाय हार्ट दैट पर्टिकुलर सम का आंसर एंड बेसिक के इसमें ऐसा आता है. छोटे सम बाय हार्ट नहीं करने की जरूरत है, बट बड़े हैं और ये प्रूव दैट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रूव दैट सम्स. I like it because I like maths and you will hate it क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, but एक बार समझ में आ गया तो it is nice. Prove that sums, which we'll do it next time. So फिलहाल कल सुबह एक वर्कशीट अपलोड करूँगा असाइनमेंट में, which you have to finish and upload it in the assignment section. Any question? और उसमें આજે કોઈ ટેસ્ટ હશે? ના આજે કંઈ નહીં. સર કેટલા વાગે કરશો? કાલે સવારે 9-1 વાગે. તમારે સ્કૂલ અને કામિની મેમની વચમાં કાલે રાતના 12 વાગે સબમિટ કરો એટલે તમારી પાસે ઇનફ ટાઈમ છે. ડન? યસ સર. ગુડ. સો બાય બાય. Yes, sir. સી યુ ડે આફ્ટર. બાય સર. બાય. બાય સર.